प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद कि आप खुदावन भाई बेंजामिन ड्यूक के यहाँ पे आप लेके आप हमें यहाँ पे आए। बहुत धन्यवाद हो खुदावन कि आपने तौफीक दी कि इस घर में हम आ सकें। आज बहुत शुक्रगुजार हैं एक बहुत प्यारे एक काम के लिए जो आपने भाई के घर में किया है कि एक बेटे से आशीषित किया जिसका नाम इन्होंने मुकाशफा प्राप्त होके सैमुल रखा और आज उस बच्चे का जन्मदिन है। खुदावन हम बहुत खुश हैं। दुआ है खुदा इस बच्चे को बहुत बरकत और आशीष दे। इस परिवार पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो। ये सभा आपको कबूल हो और खुदा हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल करें तो लोग के कुंड में ड्योट सिखले बांध दें। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, जुम्बिश करे, आप ही वचन दें और हमें आगे बढ़ाएं। सारे आदर महिमा के योग आप हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए एक छोटा सा कोरस है जो हम लोग गाएंगे। इन मोमेंट्स लाइक दीज आई विल सिंग अ न्यू सॉन्ग। आई विल सिंग अ लव सॉन्ग टू जीसस। In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to Jesus. In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to my Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. I love you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. I praise you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. Singing, thank you, my Lord. I thank you, my Lord. Singing, praise you, my Lord, my Lord. Singing, praise you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. I praise you, my Lord. Singing, thank you, my Lord, my Lord. Singing, thank you, my Lord, my Lord. Singing, thank you, my Lord. I thank you, my Lord. I thank you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. Singing, praise you, my Lord. I praise you,
my Lord, my Lord. I praise you, my Lord. I thank you, my Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद आपका नाम मुबारक हो. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Blessed be your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed be your holy name. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of all the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Let us give thanks. Thank you, Father. We worship you, Lord. We give you thanks. We give you glory. We give you honor, for you alone are worthy to be praised. Thank you, Father. Thank you, Lord. What a time, what a day, Lord, that you have given to us. One moment in thy presence is better than 1,000 years in this world, Lord. We thank you, Father, for this time and this privilege. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका नाम मुबारक हो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Can we take a higher chord, brother? Amen. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is our faithfulness, my Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of my Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, just new every morning. They are new every morning, new every morning. They are new every morning, just new every morning. Great is thy faithfulness, my Lord. Great is
thy faithfulness. Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद, आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो. Thank you, Father. Thank you, Lord, for giving us another opportunity and time. आपका नाम मुबारक हो. आइए हम लोग सब खड़े होंगे. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने फिर एक मौका बख्शा कि आपके हुजूर आने पाए, ताकि इस वचन से हम कुछ ग्रहण कर पाए. दुआ है खुदावन इस बच्चे के जन्मदिन के ओकेजन पे आप ही अपना वचन दें और अपने कलाम को हमें खोल के समझाएं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. आइए हम बाइबल खोलें और हम लोग निकालेंगे पहला सैमुएल न्यायियों के बाद पहला सैमुएल और उसका पहला अध्याय और उसकी हम 20वीं आयत से पढ़ेंगे 28वीं आयत तक. Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow. But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good. Tarry until thou have weaned him, only the Lord establish his word. So the woman abode and gave her son suck until she weaned him. And when she had weaned him, she took him up with her with 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. And they slew a bullock and brought the child to Eli. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And he worshipped the Lord there. धन्यवाद इन वचनों के लिए. आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आइए हम लोग बैठेंगे. आज हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देते हैं इस बहुत प्यारे ओकेजन के लिए, जब खुदावन ने भाई बेंजामिन ड्यूक को एक बहुत प्यारे बेटे से आशीषित किया, जिसका नाम सैमुअल रखा गया. थोड़े मॉर्निंग जब मैं कार में जा रहा था, बहुत पुरानी एक पोएम थी जो मेरे दिमाग में अकस्मात आने लगी जब मैं भाई ड्यूक को कॉल कर रहा था. ड्यूक वैन विलिंगटन, thrice the Lord Mayor of London. You remember that? Duke Van Wellington, thrice the Lord Mayor of London. I was thinking of the Dukes. और ड्यूक एक प्रिंस होता है, एक राजा होता है एक कस्बे का, इसलिए उसको एक ड्यूक कहा जाता है. तो आज खुदावन का धन्यवाद हो, हमको खुदा ने राजा और याजक बनाया और हम खुदावन के पदाधिकारी हैं. तो खुदावन का धन्यवाद हो. एक ड्यूक, ये नाम ड्यूक ही बताता है कि एक राजसी वंश है. तो एक राजसी वंश है जिसमें खुदावन ने हमारे भाई को रखा, सिस्टर को रखा. और एक्चुअली जब हन्ना का मतलब ढूंढे तो हन्ना का मतलब होता है ग्रेस. एक्चुअली इट मीन्स ग्रेस. एंड द फर्स्ट टाइम जब मैंने इस चीज को प्रीच किया, आई फाउंड दैट कि हन्ना का मतलब ग्रेस ही होता है. एग्जैक्टली. तब भाई ब्रैनम इनविजिबल यूनियन में कहते हैं, हु इज दिस मिस ग्रेस, जिसको खुदावन ने इनविजिबल यूनियन में जोड़ा और अपनी ग्रेस दिखाई. खुदावन के नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो कि खुदावन ने रखा है. जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक खास पुरुष और एक खास स्त्री माँ और बाप बनते हैं और खुदावन उन्हें मिलाते हैं ताकि मिला के एक खास किस्म के बच्चे को लेके आए. जैसा मैं कल रख रहा था
विवाह और तलाक को लेके इस संदेश में बहुत कुछ है। काफी बड़ा हिस्सा इस संदेश में, मैं कहूँगा एक बड़ा परसेंटेज, शादियां, फैशन, औरतों के कपड़े, आदमियों का चाल चलन को लेके बहुत कुछ है, जिसमें शादियां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल ये उठता है कि खुदावन एलिया की आत्मा जो खड़ी हुई आहाब और इजबेल की शादी के विरोध में, वही एलिया की आत्मा जॉन द बैप्टिस्ट में खड़ी हुई हेरोदियास और हेरोदेस के बीच में, वही आज खड़ी हुई कैनेडी और उसकी पत्नी के विरोध में, और कैथोलिक्स और अमेरिका के मिलन के विरोध में, वही आत्मा क्यों शादियों को खुदावन बहुत ध्यान से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है। शादी एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि खुदावन मात्र शादी नहीं देख रहे, खुदा मात्र ये नहीं देख रहे कितना हैंडसम लड़का है और कितनी हैंडसम लड़की है, क्योंकि जब आप उस बदन में जाएंगे तो सभी हैंडसम होंगे और सभी ब्यूटीफुल होंगी। आपकी समझ में आ रही है? खुदावन एक मेन चीज ये देख रहे हैं कि कौन सा बीज है। खुदावन की मेन चीज ये देखने की है कि बीज कौन सा आ रहा है। और आपको याद हो, यही सैमुअल जब बड़ा हुआ तो उसने कहा साउल से, खुदावन ने वचन पहुंचाया, जाओ और अमालेक को कत्ल करो, आगाग को मारो, जो अमालेकियों का राजा है, और इवन छोटे से छोटे दूध पीते बच्चे पे भी तरस मत खाना। अब जैसे मैं और अभी बहुत चढ़ रहे थे मेट्रो के प्लेटफॉर्म, तो एक बच्चा था, छोटा सा गोदारा, छोटे गाल, तो देख एकदम प्यार आता है। अचानक विचार भी आने लगा, मतलब ऑफ कोर्स हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे, लेकिन समझने के देखो ऐसे ही छोटे बच्चे होंगे बड़े प्यारे, लेकिन खुदावन को प्यार नहीं आ रहा ऐसे छोटे बच्चों पे। क्यों? खुदावन मात्र खून और गोश्त नहीं देख रहे, खुदावन देखते हैं ये बीज कौन सा है। जिस अमालेक के लिए खुदा ने कहा मैं इसे सफा हस्ती से समाप्त करके खत्म कर दूंगा, तो खुदावन देख रहे थे उस बीज को। और यही लिखा है मलाकी में कि क्यों, जब उसके पास आत्मा और आत्मा का एक शेष भाग था और वो एक और भी बना सकता था, एक और भी बना सकता था, क्यों उसने एक को बनाया, यानी एक पत्नी, क्योंकि वो एक खुदाई वंश खोज रहा था। ये बाइबल में मलाकी में लिखा है। तो आज खुदावन का धन्यवाद हो, ब्रदर बेंजामिन ड्यूक, सिस्टर ग्रेस ड्यूक एक बड़े प्यारे विवाह के बंधन में बंधे। एक दिन आया, उनकी शादी हुई, और शादी के बाद खुदावन का धन्यवाद हो, आज एक बच्चा हमारे बीच में है। और वो बच्चा ही नहीं, अब वो बड़ा हो रहा है और उसका नाम प्रेरणा प्राप्त सैमुअल रखा गया। हो सकता है शायद उस बेदारी से जुड़ा हो जो कि हमारे बीच में आई, या हो सकता है अपना कोई पर्सनल रेवलेशन हो जो खुदा ने प्रकट किया। लेकिन ये नाम सैमुअल बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारी कलीसिया की बेदारी के साथ। ये ब्रदर सैमुअल ही थे जो आए थे कनाडा से, जिनका हमने ट्रांसलेशन किया और उन्होंने तेल लिया और सामने जोसेफ को बुलाया और उसके ऊपर डाला। और सैमुअल के पास अभिषेक का तेल था जब उसने यस्सी के परिवार में दाऊद का अभिषेक किया। क्या ये सच्चाई है? और वही सैमुअल नाम हमारे चर्च में जुड़ा इस रूप में कि जब हमारे चर्च में बेदारी शुरू हुई, और अभी पहला दूसरा महीना ही चल रहा था बेदारी का, कि खुदा ने ये नाम प्रकट किया। बेदारी कहां से चालू हुई? एक वीडियो से। वो वीडियो कौन सी? विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा की कौन सी वीडियो? यही मैसेज, हन्ना और उसका बेटा। क्या आपकी समझ में आ रही है? और वहां पे जब वो पिलर ऑफ फायर आया, तो वो पिलर ऑफ फायर तस्वीरों में ले लिया गया, उसकी एक वीडियो बन गई। हमने तो तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन हमारे पास फोन आ रहे हैं भाइयों के। मुझे आज भी याद है, अपनी पुरानी वैगन आर में ड्राइव करके जा रहा था पलवल एक केस करने के लिए, सुबह करीब 6-7 बजे की बात है। तभी भाई जोल अभिषेक का फोन है, ब्रदर आपको मालूम कुछ? मैंने कहा नहीं। तो मीटिंग जो लास्ट हुई है उसमें पिलर ऑफ फायर आया। अच्छा, खुदावन जानता है। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और मैंने फोन रख दिया। सच में मैं ड्राइव कर रहा था, मैं चला गया। मुझे क्या मालूम था कि वो पिलर ऑफ फायर हमें नहीं छोड़ेगा,
फिर 3-4 लोग उस तस्वीर को लेके दिल्ली आ गए। फिर उस पिलर फायर पे तबसरा चला, फिर रेवलेशंस खुले। खुदा ने भाई डॉनी से कुछ बात करी, जवानों से फिर कुछ बात करी, फिर कुछ यंग मैन पैदा हुए, एक बेदारी का दौर चालू हुआ। और ठीक पिलर ऑफ फायर की तस्वीर इधर भाई लोग ला रहे हैं, और वहां एक संडे पहले या एक हफ्ता पहले लुधियाना में मीटिंग हो रही है, और वहां मैं मैसेज ले रहा हूं डिस्पेंसेशंस, और ले रहा हूं कि एक युग है जो समाप्त हो रहा है और एक युग शुरू हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई दैट वाज द मैसेज। और जब डिस्पेंसेशन पे मैसेज चला, एक अजीब बेदारी आई जिसमें बूढ़ी बूढ़ी औरतें लुधियाना में कूदने लगी, हिलने लगी, लट्टू की तरह घूमने लगी। एक अजीब सा दौर देखने को मिला। हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, हम भी बड़े चौंके। लेकिन खुदावन ने कुछ ऐसा किया, ये खुदा की करनी थी। उस मीटिंग में भाई जोशुआ थे, भाई ग्लैडविन भी थे अपने डब्वाली के, और ब्रदर अनिल दास भी थे, आज भी हमें याद है। फिर वहां से जब हम दिल्ली लौट के आए तो हमने यूसुफ और उसके भाइयों के ऊपर मैसेज रखा था, जिसमें सबसे पहला उठने वाला तिमोथी जॉन था। फिर धीरे धीरे लोगों ने उठना शुरू किया, एक बेदारी शुरू हुई। लेकिन जब बेदारी शुरू हुई के साथ ये चिन्ह जुड़ा, और जब ये चिन्ह जुड़ा उस समय मैसेज था हन्ना एंड द मैन चाइल्ड। और वहां एक पॉइंट आया जब ये कहा गया हन्ना की डेथ रिकॉर्डेड नहीं है, और जितने भी ब्राइट टाइप्स हैं उनकी डेथ रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि ये दुल्हन भी नहीं मरेगी, ये दुल्हन भी रैप्चर में जाएगी। खुदा को शायद ये लाइन बड़ी पसंद आई, या खुदा ने ही बुलवाई, लेकिन वो वॉइस ऑफ द साइन केवल एक लाइन नहीं थी, वो एक पूरा मैसेज था। आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के सैमुअल को लेके, और वो घटनाएं जिसमें होके कि सैमुअल आया। सैमुअल के आने से पहले वहां ऑलरेडी एक याजक चल रहा था, जिस याजक के रास्ते ठीक नहीं थे। उसने अपने दोनों बेटों को सही तालीम नहीं दी, जिन्होंने कुकर्म किया, हुफनी फिनहास, और जिन्होंने जातियां करी। मैं बोलना नहीं चाहता, बाइबल में लिखा हुआ है। वहां जब मीटिंग में बलि चढ़ाने के लिए तरह तरह के बकरे और लाते, तो सबसे पहले चर्बी वाला मीट अलग करवा लेते थे। अरे कुर्बानी आई, आप कुर्बानी की भी इज्जत नहीं कर रहे, समझ आ रही है आपके? उधर जो स्त्रियां आती हैं उनके साथ गलत काम, सब लिखा है। ये तो चल रहा था एली के घर में। इधर एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना, जिसके हस्बैंड का नाम एल्काना है, और वो अपनों के द्वारा तांसी जा रही है, हमारी है। हन्ना के साथ उसकी सौतन थी जिसका नाम पनिन्ना था, और पनिन्ना बहुत सताती थी, चिढ़ाती थी, अरे तुम्हारे अब तक बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारे अब तक बच्चा नहीं हुआ। तो बच्चा ना होना, ये बात सच है, एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। जब किसी के बच्चा ना हो तो ये मतलब मानी जाती थी बहुत ही बुरी बात। तो वो अपने अंदर कुड़ती थी। एक दिन इसी कुड़न में वो वहां गई, चर्च जो शीलो में लगता था। अच्छा, शीलो कौन सा स्थान है? शीलो वो जगह है जहां पे पुस्तक लाई गई यहोशू के जमाने में, और जमीन के 7 हिस्से बटे, क्योंकि कुछ हिस्से मिल चुके थे। जो रही बची जमीन थी वो 7 हिस्सों में बांटी गई, और वो किताब में लिखी गई कि अब वो 7 हिस्से गोत्रों को दिए जाएं। तस्वीर में 7 मोहरों की किताब जो कि 7 हिस्से में बटी, ताकि 7 कलीसिया काल के लोगों को आज उनका इनहेरिटेंस मिले, जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। वो जीवन का वृक्ष, वो सफेद पत्थर जो जय पाए मैं उसे दूंगा, वो नया नाम, वो खुदावन के भवन में खंबा, मैं उसे फाउंडेशन में रखूंगा, मैं उसे अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। ये सारे वायदे इंतजार कर रहे थे इस युग का। और खुदावन का धन्यवाद हो कि वो युग आया जबकि ये सारे वायदे रियलाइज हों।
आमीन। सो आप पाएंगे कि यहोशू की किताब में आप पाएंगे कि शीलो वो जगह थी जहां पुस्तक 7 हिस्सों में बटी। ऐसे स्थान पे जहां बादल आया, जहां 7 आवाजें आईं, जहां 7 हिस्से बटे, ताकि टाइटल डीड बटे। क्योंकि वो किताब नहीं, एक टाइटल डीड थी। क्योंकि पुराने अधिकारी कनानी तो निकाल दिए गए, अब एक नई तरीके से लोग बसाए जाएंगे, तो एक नई फरद बनेगी और एक पहला ओनर बनेगा उसका, जिसमें कभी कोई कनानी था। और कनानी से पहले अगर मैं आपके सामने बैकग्राउंड रखूं तो पूर्वज उस जमीन में रह चुके थे। उदाहरण के तौर पे याकूब बेतेल में रहा, बेतेल में उसने सीढ़ी देखी, उसकी मुलाकात खुदा से हुई, उसने उस पत्थर पे तेल डाला। लेकिन आज वो बेतेल एक हित्ती परिजी के पास था। सच्चाई है, अब्राहम ममरे में था, लेकिन ममरे किसी और के पास था। मकपेला खरीदी गई, लेकिन मकपेला खरीद तो ली गई, लेकिन अभी कोई कनानी वहां रहता है। लेकिन अब जब यहोशू के टाइम पे जमीन जीती गई, अब लोग उन जमीनों के हिस्सों को जिनमें पूर्वजों के अनुभव थे, उन्हें क्लेम करने आए हैं। किसी को बेतेल मिलेगा, किसी को पेनुएल मिलेगा, किसी को किरियत यारीम मिलेगा, हालेलुया, किसी को बीरशिमा मिलेगा, किसी को वो कुंड मिलेंगे, वो कुएं मिलेंगे जो अब्राहम ने खोदे थे, जो इसहाक ने खोदे थे। वो टाइम टेस्टेड मेमोरियल्स अब जो लिखे गए, अब किसी का पोजीशन बनने जा रहे थे, क्योंकि अब वो जमीन इनकी होने जा रही थी। आमीन। ऐसे टाइम पे जब किताब 7 हिस्सों में बांटी गई, आज खुदा का धन्यवाद हो, उसी युग में मैं और आप रह रहे हैं। जब वो किताब 7 हिस्सों में बटी, 7 मोहरों वाली टाइटल डीड ऑफ रिडेम्पशन आई, ताकि उन पुत्रों को उनका मिरास समझाएं और उनकी मिरास दें। हमारी मिरास मात्र शारीरिक नहीं, आत्मिक बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी मिरास अनंत जीवन। आपकी मिरास उस नए शहर में जिसका आजकल प्रचार हो रहा है, एक स्थान, आपका एक घर है, वहां पे आपकी एक सड़क है, आपका एक जीवन का वृक्ष है। हर चीज बटेगी। और ये यहोशू की कमीशन में किताब 7 हिस्सों में बांटी गई। एक किताब वो थी जो मूसा के जमाने में आई, वो भी तस्वीर 7 मोहरों के मुकाशवे की है। एक किताब 7 हिस्सों में बांटी गई यहोशू के टाइम पे शीलो पे, तस्वीरों में, वो भी तस्वीर है पुस्तक की, टाइटल डीड की। खुदा का नाम मुबारक हो। किसी को बैतलहम मिलेगा, इनफैक्ट सलमोन तो बैतलहम ही लेगा, और राहाब से शादी करने के बाद वो बैतलहम बसाएगा, ताकि वहां से बोआज आए, और बोआज और रूत से ओबेद, और फिर जेसी, और फिर एक राजा जिसका नाम दाऊद है। किसी को बैतलहम मिला, किसी को बेतेल मिला, किसी को किरियत यारीम, किसी को मकपेला, किसी को ममरे, किसी को वो जगह मिली जहां पहली बार अब्राहम देश में घुसा था, जब मेसोपोटामिया कसदियों की ओर से आया। किसी को वेदी मिली जहां अब्राहम ने एक कुर्बानी चढ़ाई। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो तमाम चीजें जो पूर्वज पेंतेकुस्त के अनुभव प्राप्त करके पाए, किसी को आज पतमस मिलेगा, किसी को आज पौलुस का कोई अनुभव मिलेगा, क्योंकि आज वो भूमि में लौट के आ गया है। इस मैसेज ने वापस होमलैंड में हमें रिस्टोर किया है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और जमीन बटी। ऐसी जगह पे वाचा का संदूक एक तंबू में रखा गया। क्या ये सच्चाई है? और वहां पे एक स्त्री जो कि सताई हुई है अपने कुल के द्वारा, अपने परिवार में, उससे बुरा भला कहा जाता था पनिन्ना के द्वारा, जिसके कारण वो बड़ी परेशान थी। तब अपने दुख को लेके वो उस मीटिंग में पहुंची। समझ मारिए, हमने देखा ब्राइड की बहुत ढेर सारी टाइप्स हैं। क्या है दुख हन्ना का? आइए जरा इस दुख को समझें। आप आत्मिक लोग हैं, समझेंगे। दुख ये है, मेरा पति मुझे पनिन्ना से ज्यादा प्यार करता है, लिखा है बाइबल में, लेकिन मेरे बच्चा नहीं हो रहा। आइए इसको थोड़ा और तोड़ें। मैं कंसीव नहीं कर पा रही। आइए इसको थोड़ा और तोड़ें।
मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो प्यार एक बच्चे में नहीं तब्दील हो पा रहा। आइए थोड़ा इसको गहराई में समझें। ये थोड़ा गहरा पॉइंट है जिसको मैं रखने की कोशिश करूंगा आपके सामने। हर मीटिंग क्या होती है? हर मीटिंग दूल्हा आता है, और जब चर्च दुल्हन करके बैठती है तो वचन का बीज दिया जाता है दुल्हन को। लेकिन बीज देना एक बात है, बीज का ठहरना एक दूसरी बात है। हन्ना का रोना यह है, बीज ठहर नहीं रहा। जाने कितनी बार हम और एल्काना प्यार में बंधे, कितनी बार एल्काना ने मुझे प्यार किया, लेकिन आज तक बच्चा नहीं हुआ। आज अगर मैं आत्मिक रूप से कहूं, जाने कितनी मीटिंगें हुई, कितने सेशंस हुए, लेकिन किसी भी सेशन इस रूप में मैच्योर नहीं कर पाया कि वो वचन दिल में ठहर पाए, कि वो वचन देहधारी हो सके। यह है प्रेग्नेशन और पैदा करना। जाने कितनी बार मीटिंगें हुई, सिर पे से निकल गई। कितनी बार बीज आया, सब वॉश आउट हो गया। आइए इसको समझे। मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। बीज आया, ठहरा नहीं। रोना इस बात का है, अगर मैं एक आत्मिक रूप से कहूं, कि जब पुलपिट से मैसेज प्रचार होता है तो मेरे अंदर दिल में ठहरता क्यों नहीं? रोना ये है, क्योंकि अगर ठहर जाए तो देहधारी हो जाएगा, एक बच्चा पैदा हो जाएगा, वचन पैदा हो जाएगा, वचन मुजस्सम हो जाएगा, जो हो नहीं रहा। मीटिंगें होती हैं, मैसेजेस होते हैं, सब कुछ होता है। नबी ने स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड के मैसेज में समझाया, दो किस्म की कोखें हैं। एक वो जो एक स्त्री के पास होती है शारीरिक रूप से, एक आत्मिक कोख है जो कि आपका मन है, आपकी सोल है, मन है, जहां खुदा का वचन रूपी बीज जाता है। इस परिभाषा में ना स्त्री ना पुरुष, सबके पास वो कोख है, एक मन वचन को ग्रहण करने का। इसलिए भाई बहन सब मिलके एक मेनी मेंबर्ड बॉडी मसीह की दुल्हन बनते हैं। आज उस दुल्हन में नर भी हैं और नारी भी हैं, क्योंकि आज एक मसीह की दुल्हन के रूप में एक कोख है। समझ मारी है? क्या आपको मालूम है एक और चीज? प्रेग्नेशन क्या हन्ना ने एक ही बार पाया? क्या सैमुअल के बाद और बच्चे हुए? हुए। जिसके लिए भाई ब्रैनम ने इनविजिबल यूनियन में कहा, लूथर के युग में स्त्री ने, लूथर्स ने बच्चा पैदा किया जस्टिफिकेशन का। बच्चे का नाम बताया धर्मी ठहरना। आपने शायद मैसेज पढ़ा नहीं। हाँ, मैसेज ध्यान से पढ़ा करो। बच्चा जो लूथर ने पैदा किया वो था जस्टिफिकेशन, लेकिन तब लूथरन से कहा गया अगला बच्चा पैदा करोगे, वहां वो रुक गए। यानी ये भी गुनाह है। जब जब मौसम बदले तो मौसम का बच्चा पैदा करना है। आज का भी कोई मौसम होगा, आज का भी कोई वायदा होगा, आज के लिए भी खुदा ने कुछ चीजें बोली होंगी। एक सेकंड सच, हालेलुया। कुछ खाली बर्तन जो भरे जाएं, आमीन। एक और घुड़सवार, एक सवारी और एक दुल्हन का यहां से जाना, क्या उस बच्चे को पैदा होना है? फिर उसका कोई बीज है, उस बच्चे का कोई बीज है। बच्चा पैदा होता है बाद में, पहले बीज आता है। आज भी मेरी क्लिनिक पे एक आए, काफी स्ट्रेंज कपल था जो मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। और क्या प्रॉब्लम भाई? इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हुआ। 4 साल हो गए शादी को। क्या कारण है भाई? अब कारण ढूंढना ही पड़ेगा, तो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। उनमें ठीक था, कुछ सब ठीक था, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। कोई नहीं, ऐसे हमने कई केस देखे, खुदा का धन्यवाद हो गए ठीक, और उनका हो गया काम। तो ऐसे ही आत्मिक तौर से अपने से आज हर विश्वासी जो यहां बैठा है और जो बाय नेट
या जैसे रिकॉर्डिंग करके सुन रहा है, ये सोचे मैंने अपने प्रभु के लिए कौन कौन से वचन को पैदा किया है अब तक। मेरे को बपतिस्मा लिए 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 30 साल हो गए। मसीह के लिए जो हमारा दूल्हा है, मैंने कौन से वायदे को अपने जीवन में पैदा किया। तुरंत एक जवाब आता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अरे भाई, मैं बात उसकी नहीं कर रहा, ये तो अंकुर नरूला की मीटिंग में भी चल रहा है, ये तो प्रॉफिट बलजिंदर की मीटिंग में भी बहुत चल रहा है। हमारा इससे मतलब नहीं है भाई। बच्चा, अब मेरे को बताइए, ग्रेस और भाई बेंजामिन और ग्रेस भाई बहन के यहाँ जब ये बच्चा सैमुअल पैदा हुआ, क्या सब सैमुअल पैदा कर सकते हैं? काम नहीं, सब तो नहीं कर सकते। तो सवाल ये, वो बच्चा बताओ जो आपने पैदा किया, जो दूसरा नहीं पैदा कर सकता। कॉमन बच्चे मत दिखाओ, उसके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए, इसमें तो एक भीड़ खड़ी हो जाएगी। अपना बच्चा बताओ, तुम्हारे कौन सा बच्चा पैदा हुआ अब तक? तुम्हारे जीवन में कौन सा यूनिक वायदा जो कि तुम हो वचन के अनुसार देधारी हुआ? और केवल खुदावन आपको वहां पे नहीं रोकना चाहते, वो वचन का प्रेग्नेशन मिलता है जब दूल्हे के साथ दुल्हन अकेले बैठे। ये कोई सामूहिक हिसाब किताब नहीं है, ये वो समय है जब दूल्हा और दुल्हन अकेले बैठे हों। कितनी जरूरत है पर्सनल ऑल्टर की। एक है फैमिली ऑल्टर, एक है चर्च, एक है पर्सनल ऑल्टर। पर्सनली आप कितना बैठे और खुदा ने कितना आपसे बात करी और कैसे उस बात के प्रेग्नेशन ने आपके द्वारा कुछ पैदा किया। क्या यह सवाल बनता है? यहां एक स्त्री है, वो तो रो रही है, जो पैदा कर रही है वो उसको सता रही है, बीमारी आपके, और वो परेशान है। के लिए बहुत परेशानी का एक पॉइंट बना हुआ कि एल्काना मुझे ज्यादा प्यार करता है, मुझे ज्यादा फेवर देता है, मुझे ज्यादा गिफ्ट देता है, मेरे पास वरदान तो सारे हैं। मैं रुका कि सोचें आप, मेरे पास वरदान तो सारे हैं, बच्चा एक भी नहीं। तो इसका मतलब वरदान बच्चा नहीं होता। मैं अन्य भाषा बोल लेती हूं, मैं प्रोफेसाई कर लेती हूं, चंगाई का वरदान, नाना प्रकार के वरदान जो पेंटिकॉस्टल्स को मिले। वरदान बच्चा नहीं होता। पेंटिकॉस्टल युग आया वरदानों के साथ, लेकिन तब आगे एक बच्चा पैदा हुआ। आपकी समझ में आ रही है? और खुदावन उसके द्वारा एक मैसेज लाए कि क्या वरदानों से आगे बढ़ोगे? वरदानों को पवित्र आत्मा समझ लिया। मैंने पेन पकड़ाया वरदान की तौर पे किसी को, पेन क्या मैं हूं? पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा में तो आसमान जमीन का फर्क है। सवाल पौलुस ने इफिसुस में यह नहीं किया कि क्या तुमने पवित्र आत्मा के वरदान पाए, सवाल यह क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया। यह सवाल आप लोग समझ जा सकते हैं इस बात को। आज खुदा धन्यवाद हो, खुदा ने इन चीजों को हम पे खोला और हमें समझाया। हमारे घर में सिस्टर एलिस आई, मैं आपको एक टाइम बता रहा हूं, और सिस्टर एलिस ने आके हमारी मम्मी के लिए दुआ करी। एक मिसेस नथानियल हुआ करती थी, मैं बात कर रहा हूं 1978 की। कई लोग तब पैदा भी नहीं थे यहाँ के, और कई लोग जो थे जहां भी थे। अरे भैया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक मिसेस ऑलनट थी और सिस्टर एलिस और ये लोग। अब मैं एक और चीज जानता हूं जो मैं, क्योंकि अब पता लग गया, अब मैं बोलना नहीं चाहता, जो एक क्या बोलूं मैं, छोड़िए, खैर उस चीज को मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। एक समझे युग था वो, और जिनके यहां सिस्टर एलिस ठहरी थी वो एक प्रिंसिपल थी, उन्हीं की एक बेटी थी जेसिका लाल, जिसका मर्डर हुआ। मुझे पूरा इतिहास याद है, आज तक पूरी कहानी याद है। हमारे फादर बड़े प्रेम में गए, बल्कि खाना बना के गए कि सिस्टर एलिस को खिलाएंगे पिलाएंगे। वहां कुछ और देखा, खैर छोड़िए, फिर वो आ गए। तब खुदावन का धन्यवाद हो,
अंत समय का ये मैसेज बॉम्बे में मिल चुका था, तब खुदा ने संदेश को खोलना शुरू किया। और हमें तो मालूम नहीं, जैसे नबी के साथ था कि वो भी तो पेंटिकॉस्टल युग में ही पैदा हुए, लेकिन उसमें से निकल के आए। खुदा का धन्यवाद हो। मैं पेंटिकॉस्टल को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं वो भी एक मान के चलिए एक स्थिति थी। अब उस स्थिति के बाद पानी, लहू और आत्मा जब तीनों पूरा हो जाए तो एक बच्चा भी तो आता है। तीनों एक बात में सहमत हैं। पवित्र आत्मा के वरदान, आमीन। लेकिन वरदानों के अलावा पवित्र आत्मा स्वयं जब देहधारी हो एक जिस्म में, खुदा का नाम मुबारक हो, तब एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आई, सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री आई। खुदा उनका नाम की तारीफ हो। तो आप पाएंगे कि हन्ना के पास एल्काना के तमाम वरदान हैं। आज तुम्हारे लिए मैं हार लाया हूं, जैसे पुराने घरों में होता था, आंख बंद करो खोलो, होता नहीं। देखो हार, देखो तुम्हारे लिए एक नई अंगूठी लाया हूं, देखो तुम्हारे लिए मैं ये लाया हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं। प्यार होता है, नो डाउट। उसी प्रेम में खुदावन के कई वरदान हैं। आज मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूं, आज तुम्हें मेरा ये गिफ्ट, आज तुम्हें मैं ये दे रहा हूं, आज ये तुम्हारा ये बोनस, आज ये। तो ये सारे हन्ना के साथ तो बहुत हुए। कभी कभी गिफ्ट एक आदमी होता है जो मिलता है गिफ्ट के रूप में, सेवकाई होती है। ऐसी गिफ्ट्स हन्ना के पास बहुत विजिट कर रही हैं। तस्वीर सोचिए। प्रॉब्लम बस एक है, बच्चा नहीं है। बीमारी है। समस्या सबसे बड़ी यह है, इतने साल शादी हो गए, जबकि वो मुझे ज्यादा प्यार करता है, मेरे पास पन्निन्ना से ज्यादा वरदान है, गिफ्ट से उसने मुझे ओवरलोड कर रखा है, फिर भी अभी बच्चा नहीं है। यही तो प्रॉब्लम सारा के साथ थी। अब्राहम उसे बहुत प्यार करता था, बच्चा नहीं था, और बचपन से थे साथ में। बचपन नहीं कहेंगे, मतलब एक उम्र के बाद। अच्छा, एक और चीज कही गई, सही बात है, क्लोज फैमिलीज में हम लोग शादियां नहीं करते, लेकिन एक चीज देखो, एक थॉट ब्लॉक एक और भी है कि भाई इनसे आप शादी कर, इनके साथ तो मैं बचपन में खेला हूं। अरे खेले हो तो वो एक टाइम था, अगर आप खेले थे तो ठीक है, उस टाइम एक था, लेकिन अब जब वक्त है शादी का, तो आप शादी के तौर तरीके से प्रॉपर वचन के अनुसार क्या बन नहीं सकते। लोगों के अपने अपने विचारों के थॉट ब्लॉक्स हैं, खैर जो भी है, सबका अपना अपना विचार है। एनी हाउ, हन्ना एक तस्वीर है एक कलीसिया की, वरदान से भरीपूर्ण, दूल्हे के प्रेम से परिपूर्ण, खाने को सब कुछ। एल्काना ने बल्कि कहा, क्या तुम्हें किस बात की कमी है? क्या मैंने कुछ छोड़ा तेरे लिए? नहीं। समस्या एक है, और वो है बहुत बड़ी समस्या, बच्चा नहीं है। अगर आपके आत्मिक जीवन में कोई वायदा देधारी नहीं हुआ, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं कि आप उपवास में जाएं? आप एक दुखी हो के अपनी आत्मा को कोसें, कोसे क्या, मैं कोसना नहीं बोलना चाहता, अपने को क्या बोलें, तोड़ें, भवन जाएं। क्या है कारण? खुदावन, इतने साल हो गए मीटिंग्स को अटेंड करते करते, मेरे को आपका प्रेग्नेशन चाहिए, मेरे को खाली ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, मेरे को एक ऐसी डीलिंग चाहिए जो कि तब्दील हो एक प्रेग्नेशन में। नबी कहते हैं हमारे पास दिव्य चंगाई तक का तो विश्वास नहीं, रैप्चरिंग फेथ की क्या बात करना। वो भी एक प्रेग्नेशन है जो रैप्चरिंग फेथ लेके आता है। हन्ना का रोना यहां पर है कि मेरे पास, जहां तक पति का सवाल, उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि पन्निन्ना से कितने बच्चे पैदा हो गए, बीज की कोई समस्या नहीं, वरदान की कोई समस्या नहीं, प्रेम की कोई समस्या नहीं, बच्चा नहीं हो रहा। इस दुख में अपने बांझपन को लेके वो वहां पहुंची जहां मोहरें खुली थी। क्या मोहरों के मैसेज से बांझपन दूर होता है? ममरे में क्या हुआ सोचिए। क्या ये बात मैं अब्राहम से छिपाऊं? मोहरें खोली गई, और अगले ही घटना क्या है?
सारा का बांझपन, अब्राहम का मरापन जाता रहा। क्या मोहरों के मैसेज से, गर्जनों से बांझपन चला जाता है? प्यारे भाई बहन, यही है, कितनी जरूरत है कि आज हम उस आवाज को सुने। तो ये क्वेश्चन मार्क जो इसके जीवन में है वो ये है कि आपने मुझे बरकत क्यों नहीं दी। यह है रोना। और खुदावन ने पहले से सोचा था कि तुम्हें मैं एक ऐसे ही बच्चा नहीं दूंगा, तुम्हें जो बच्चा दूंगा वो एक यूनिक बच्चा होगा, वो इज़राइल का नबी बनेगा जिसके सामने राजा भी झुकेंगे, क्योंकि नबी से बड़ी कोई पोस्ट कहीं इज़राइल में है नहीं। राजा की भी नहीं, राजा भी झुकता है नबी के सामने, उसको सुननी पड़ेगी, क्योंकि दस से द लॉर्ड केवल एक नबी के पास आता है। और वचन के अनुसार न्यायियों का अंत, राजाओं की शुरुआत के बीच में यह सैमुएल की किताब। अभी मिलेनियम नहीं आया, न्यायियों किताब का समाप्त, समसून आखिरी जज जो अंधा किया गया, लाउदीसिया की तस्वीर, लाउदीसिया खत्म हो रहा, मिलेनियम आ रहा के जोड़ पे एक औरत है, एक शीलो है, जहां वो जा रही है एक दुआ के साथ। और दुआ क्या? मेरा बांझपन कब दूर होगा। आपकी समझ में आ रही है? अब्राहम और सारा के समान इसके पास कोई वायदा नहीं है। अब्राहम और सारा के साथ तो एक वायदा है, तो वो वायदे पे टिके हैं। इसके साथ तो कोई वायदा नहीं है, इसलिए नहीं मालूम बांझपन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये चाहती है कि दूर हो। आमीन। जिसके साथ वो शीलो जा रही है और दुआ कर रही है। कई बार अपनी आत्म विभोर प्रार्थना में आप मिसअंडरस्टूड होते हैं दूसरों के द्वारा, जैसा हन्ना भी हुई। एली ने समझा कि ये कैसी औरत है, ये तो बेलियाल मतलब ये बदमाश औरत लगती है, पी के आ गई और जो नशे में बुड़बुड़ा रही है बैठ के। तब उसने क्लियर किया कि मैं किसी नशे में नहीं हूं, ये मेरा दिल का दुख है। सब लोग चले गए मीटिंग से, लेकिन वो वहीं बैठी रही। यानी एक ऐसा टाइम, उसे ये भी नहीं मालूम कि मीटिंग भी खत्म हो गई, लोग भी चले गए जय मसीह की करके, वो तो वहीं बैठी है। उसे यही नहीं मालूम मीटिंग खत्म हो चुकी, क्योंकि वो दुआ में आत्म विभोर है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग नीचे चलें और खिचड़ी खाएं। हन्ना को सुनाई नहीं दिया, उसकी दुआ भी खत्म नहीं हुई थी। एली ने देखा कि तो वहीं बैठी है, नोटिस किया। तब एली ने कहा ये क्या चक्कर है, तुम कोई ऐसी औरत तो नहीं, मतलब कहने का मतलब यही था। तब उसने कहा मैं वो नहीं, लेकिन तेरी दासी दुखियारी है और एक दुख में आज यहां आई और अपने दुख की बात मैंने प्रभु से कही। तब एली ने उससे कहा जो तूने दुआ में कहा तेरे साथ हो। समझ में आ रही है आपके? ये सुन के हन्ना अपने आंसुओं को पोंछती हुई अपने घर चली गई। खुदावन ने दुआ सुन ली। और अब हम यहां पढ़ रहे हैं कि जब समय आया, एक मौसम है, when the time was come, हन्ना had conceived, कि हन्ना गर्भवती हुई, that she bare a son, और उसके एक बेटा हुआ। प्रकाशित 12 में एक स्त्री है जिसके एक नर बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा जिसका नाम सैमुएल है, पैदा ही होते हुए कुछ दिन घर में रखा गया, उसके बाद खुदा को दे दिया गया। कहां रहने के लिए? मंदिर में। ये खुदा के भवन में उठा लिया गया। वो मैन चाइल्ड जो प्रकाशित 12 में पैदा हुआ, खुदा के भवन उठा लिया गया। क्या सच्चाई है तस्वीरों में? और ये हन्ना, इसको 2 पंख मिले उकाब के, कि ये उस स्थान में उड़ जाए जहां इसका पालन पोषण हो 3.5 साल के लिए। एक तस्वीर में इज़राइल और एक और तस्वीर में देखें तो ये अन्य जाति दुल्हन की भी तस्वीर है, दिखाई जो हमें दिखाई देती है।
जो जाएगी और ब्याह के भोज में 3.5 साल बोझ करेगी। क्या आपकी समझ में आ रही है? सैमुएल एक बहुत ही स्पेशल बच्चा है। ये मैंने खुदावन को लेंट किया है, लोन पे दिया है। इंग्लिश में शब्द आया, आई हैव लेंट इट टू द लॉर्ड। क्या आपको मालूम, यह मां बाप के लिए भी बात है समझने की। जब उस बच्चे ने अपना छोटा सा टिफिन 5 रोटी 2 मछली का लॉर्ड जीसस को दिया, बच्चा क्या भूखा रहा? या 5 रोटी 2 मछली से ज्यादा खाया? जब आप कुछ भी चीज यीशु मसीह को देते हैं, वो बढ़ा के उसी चीज को लौटा के आपको दे देते हैं। कितनी बार हम बच्चों को डेडिकेशन के लिए लाते हैं और दुआ में यही कहा जाता है इसे आप जो चाहें बनाएं, फिर हम बैठ जाते हैं चाहने के लिए, हम जो चाहें वो बने। खुदा ने कुछ दिन दुआ किस लिए करवाई थी? नहीं, दुआ तो तुमने ये करवाई थी जो चाहे आप उसे बनाएं। अब तुम्हारी चाहत है नहीं? लेकिन मैं आपको इसमें भी कहूंगा कि खुदावन छोड़ते नहीं, और हमारी चाहत से भी बढ़कर खुदावन बच्चे को बनाते हैं। जब हन्ना ने ये बालक खुदावंद को दे दिया, खुदावन ने उसे क्या बनाया? एक डॉक्टर इंजीनियर कुछ का इलाज करेगा, कुछ आर्किटेक्ट का काम कर लेगा, या कुछ मशीनें बना लेगा। नबी तो पूरी दुनिया जानेगी भाई। खुदा ने एक हाईएस्ट पोजीशन दी। बाइबल लिखा है सैमुएल के शब्द खुदा ने कभी गिरने नहीं दिए। आज हम इस नाम सैमुएल को यहां सेलिब्रेट करने बैठे हैं। एक बच्चा जिसका नाम सैमुएल। एक ऐसे टाइम पे आया जब एक याजक पद्धति बिगड़ चुकी थी। क्या है हाल आज दुनिया का? सदोम और अमोरा हर गली गली में हुफ्नी फनास घूम रहा है, और खासतौर से नॉर्थ कैंपस में तो हर जगह ही घूम रहा है। बुरा हाल है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे आइडिया है, मैं भी घूम चुका हूं सड़कों पे। जब हमारे टाइम पे बुरा था तो आज 30 साल के बाद तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जब मैं और बॉस मेट्रो में आ रहे थे, क्या सब छोड़िए। खैर, मतलब कहने का यह है कि दुनिया बिल्कुल अब बर्बाद हो चुकी है। सब भाई अभी बता रहे थे कॉलेजेस का बुरा हाल है। पढ़ाई के नाम पे कोई पढ़ाई नहीं, दिमाग गोल हो चुके, सब कुछ बिक चुका। लेकिन खुदा उनका धन्यवाद हो, ऐसे टाइम पे जब हुफ्नी फिनास जैसे लड़के बदमाश और उनके बाप जिनका कोई कंट्रोल नहीं अपने बच्चों के ऊपर, और एक समय आ गया कि इज़राइल में से उसकी महिमा उठा ली जाए, इकाबोद लिख जाए। लेकिन इकाबोद के आने से पहले एक सैमुएल आया। ये पॉइंट समझने का है। इससे पहले कि एली के घराने पे इकाबोद लिखे, एक और बच्चा आ गया जिसका नाम सैमुएल है। छोटा बालक है, और वो क्या कर रहा है? बचपन से मंदिर में खुदावन के भवन में सेवा कर रहा है। उसे कहा चलो जाओ हमारा पान बनवा ले आओ। जी अंकल। वैसे अंकल मेरा काम तो शायद भवन है। क्या बोला तुमसे? हम बड़े भाई लोग हैं तुम्हारे, हमारी सुननी है, जाओ। जी अंकल गए। तब पापा ने कहा, बूढ़े पापा ने कहा, देखो बेटा वो सामने वो मेज पड़ी है, देखो बेटा वो सामने वो जगह पड़ी, उसको साफ करो। भवन की वो जो मेज है उसको खत्म साफ करो। आज मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन्होंने हमारे भवन में झाड़ुएं लगाई और चादरें बिछाई और पंखे साफ किए, हर एक के लिए मैं गवाह हूं। आज सब सेटल्ड हैं। जिन्होंने अपनी सेवाएं भवन में दी, खुदा ने उन्हें सेटल किया। एक समय आया लगा कि सेटल नहीं हो रहे, अचानक ऐसा सेटल किया कि यार हम तो सोच भी नहीं सकते कैसे हो गया। चिल्मारी करने वाले दूसरों पे हंसे नहीं,
अपने से बेहतर दूसरे को समझें। और यही हुआ। तो सैमुअल क्या करता है, वो घर भवन में की सफाई कर रहा है। एली बूढ़े पापा के कभी कभी पैर दबा देता है, कभी जो एली कहे, सैमुअल भवन में वो काम कर रहा है। अच्छा जाओ सैमुअल, अब तुम्हारा टाइम सोने का हो गया, जाओ सो। एली जो है वे कमरे में सो रहे हैं, उसको दूसरे कमरे में सो। सोने की जगह कौन सी है? पर्दे के सामने। पर्दे के पीछे क्या है? वाचा का संदूक। पावर हाउस के पास सो रहा है। बिजली घर के सामने सो रहा है, जहां असीमित पावर है। केवल बीच में एक पर्दा है और उसके साइड पे ये बच्चा अपनी खटिया लगा के सो रहा है। उसे बेचारे को क्या मालूम, रात को एक आवाज आई, मारी आपके, सैमुअल सैमुअल, या नहीं? लगता है एली अंकल ने बुलाया। एली के पास चले गए। आपने बुलाया? नहीं नहीं, मैं तो नहीं बुलाया। जी जी, वहां पे चले गए। फिर आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। फिर परेशान, लगता है एली अंकल ने बुलाया। एली के पास गए, नहीं आपने बुलाया है, बताइए क्या बात है। मैं पैर दबाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। जब ऐसे 2 बार हो गया तो कहा, एली को समझ में आने लगा ये बच्चा खास है, कहीं ऐसा तो नहीं खुदा इससे बात करना चाहता हो कि अब की बार आवाज आए तो ये कहना, रब फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आप फरमाइए खुदावन, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, खुदा किसी से बात करे एक बड़ी बहुमूल्य बात है, होती नहीं। और तब जब तीसरी बार ऐसा हुआ, बच्चे को क्या मालूम, बच्चे ने वो दोहराया, रब फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तेरा बंदा मोबाइल पे बिजी नहीं है, तेरा बंदा गेम्स नहीं खेल रहा, तेरा बंदा आपकी सेवा में मशगूल है। कितना फर्क है आज के बच्चों से। नेट, गेम्स, गेमिंग, ऑर्डरिंग, जोमेटो, ये वो। सैमुअल सब में नहीं है। उसका काम है खुदावन के भवन में। और खुदावन भी फिर फोकस करते हैं ऐसे बच्चों के ऊपर। ये स्पेशल क्लास है, बहुत ही स्पेशल क्लास है। आपने आवाज सुनी, आपने दोहराया। अंकल ने क्या कहा था? अच्छा, रब फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदा ने कहा, सैमुअल मुझे तुझसे बात करनी है। अब ये चौंक गए, ये तो खुदा है जिनकी मैं सेवा कर रहा था, ये बूढ़े एली अंकल से क्यों नहीं बात कर रहे? उसने कहा, बेटा मैं जिससे चाहूं बात करूं। उस याजक पद्धति को तो वो रिजेक्ट कर चुके थे। उन्हें ये मालूम था ये है जो कि अब एक नबी बनेगा, ये मेरी गिफ्ट है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे कुछ कहना है। मुझे बहुत तकलीफ है एली और उसके 2 बेटों से। उन्हें पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अब मैं एक ही दिन में इन सब का सत्यानाश कर दूंगा। और ये तमाम बातें जो कि एक न्याय का मैसेज, एक प्लेग का मैसेज, कटोरों के उंडेले जाने का मैसेज एक प्रॉफिट को दे रहे हैं जिसका नाम सैमुअल है। अभी बच्चा है, मैं ये अब करने पर हूं। गॉड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज ऑफिस। चाहे वो बच्चा ही हो, गॉड विल विजिट। खुदावन कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अपने दास बशदकता पे, चाहे वो 7-8 साल का लड़का ही क्यों ना हो, प्रकट ना कर ले। प्रेज गॉड, खुदा का नाम मुबारक हो। आज एक नबी आए। जब सैमुअल आया
तो लिखा है आखिरी दीवट जल रही थी और उसकी भी ज्योति जा रही थी। लाउदीसिया खात्मे पर ब्लैकआउट, जब चांद का 7वां फेज खत्म, ऐसे टाइम पे जब लाउदीसिया समाप्त हो रही है, पृथ्वी पे एक नबी है सैमुअल सरीखा, जिसके ऊपर खुदावन मन खोल रहा है, लॉस एंजलिस का मन खोल रहा है, अमेरिका का मन खोल रहा है, उस याजक पद्धति का जो दुष्ट हो चुकी, जो गेज की शादियां करती है, जो लेस्बियंस की शादियां करती है, कि अब इस पापी और व्यभिचारी जाति के साथ अब मैं क्या करने पर हूं। मेरे बेटे सैमुअल सुन, समझ में आ रही है आपके? इस पत्थर को ले और उसे ऊपर फेंक, एक भवंडर बनेगा, और ये बोल कि जजमेंट ऑफ वेस्ट कोस्ट को आ रही है। खुदा का नाम मुबारक हो। ये है वो सैमुअल, लाउदीसिया के अंत पे, मिलेनियम से पहले एक नबी पृथ्वी के ऊपर। और जब ये सैमुअल पैदा हुआ, किसके द्वारा? एक ब्राइड के द्वारा। जब ये सैमुअल पैदा हुआ, खुदा ने उसे विजिट करके उसको मन खोल के बताया। एली ने यह भी कहा था जब बात हो जाए मुझे बता जरूर देना, क्योंकि एली को भी समझ में आ गया था मुझसे तो आजकल बात हो नहीं रही। वो समझने की कोशिश करो, मुझसे तो बात हो नहीं रही, अब इस बच्चे के मार्फत सुन ले। आई समझ में आपके? डीलिंग अब इसके साथ चल रही है। बच्चे ने आके अंकल मुझसे ये बात बोली, उसने तो सारी बातें बता दी। एली ने कहा जाओ बेटा, जो कहा खुदावन को ही मुबारक, खुदा का नाम मुबारक हो। और वही हुआ। एक दिन में होफनी फिनहास और एली उड़ा दिए गए। आज हमें भी, आपको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब आपको, मुझे कलीसिया में कोई पद मिला, कलीसिया में खुदा ने कोई ऑफिस दिया, अपना राजा और याजक हमें बनाया, जो देना जानते हैं वो लेना भी जानते हैं। मिनट से पहले एली की मिनिस्ट्री खत्म, एली के दोनों बच्चे समाप्त, क्योंकि वो 2 बच्चे खुदा के मार्गों पे नहीं चले। क्या ये बाइबल है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। हम जो राजा और याजक हैं, अपने बच्चों की क्या तरबियत करते हैं? क्या हमारे घर में तो कोई हुफनी फिनास नहीं पल रहा, जो आगे चल के कारण बने हमारे भी और अपने भी मरने का, और एक बुरा नाम इकाबोद लेके आए इस घर के ऊपर? यह है समझने का विषय। खुदा रहम करे। मैं कहूंगा इसमें हमें बहुत रहम की जरूरत है खुदा की, कि हमारे घरों में ऐसा कोई बच्चा ना पले, वरन खुदावन उनके नेचर्स को बदलें, तब्दील करें और अपना सरीखा बनाएं। समझ में आ रही है? हमारे घर में डिस्को डांसर नहीं पैदा हो रहे, समझ में आ रही है आपके? हमारे घर में खुदा के बेटे बेटियां पले, जिन्हें नए जन्म का तजुर्बा मिले। और सैमुअल एक ऐसा ही बालक है, बल्कि खुदा का नबी है, जिसके पास खुदावन विजिट करके उसे बताते हैं। ये मैन चाइल्ड सीधा मंदिर में ले लिया गया, और उसके बाद हन्ना का जिक्र बाइबल से खत्म हुआ। She disappeared in silence. वो ब्राइड साइलेंस में डिसअपियर कर गई। अब मैं कहूंगा प्यारे भाई बहन, क्या चक्कर है? आज जुलाई 3, जब नबी ने ब्राइड का प्रीव्यू देखा, मैं अभी चेक कर रहा था, मास्टरपीस में बोला उन्होंने, जो कि 5 जुलाई का मैसेज है। 2 दिन पहले एक घटना घटी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नबी ने कहा जुलाई द 3rd, ये था वो दिन जब उन्होंने चर्चेस देखे, फिर फाइनली उन्होंने एक ब्राइड देखी। और तब उन्होंने कहा क्या मैंने यही आपके लिए पैदा किया? तब आवाज ने कहा देयर विल बी अ ब्राइड। और तब उन्होंने लॉन्ग रोब्ड उन स्त्रियों को देखा जो हर नेशन से थी, अपने नेशनल गारमेंट्स में, और वो जा रही थी लॉन्ग रोब्ड और लंबे बाल, और वो ऑनर क्रिश्चियन सोल्जर कहती हुई जा रही हैं जुलाई 3 तारीख को। और ठीक जिस दिन वो देखा, उन्होंने कहा थोड़ा समय वो आगे बढ़ी कि वो ऊपर जाने लगी, और वहां से नबी ने प्रीच किया मास्टरपीस जुलाई 5 तारीख को। जुलाई 3 को जिस दिन ब्राइड का प्रीव्यू देखा गया, उस दिन ये बच्चा पैदा हुआ इस घर में। क्या इसका कोई जोड़ है? आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था क्या मास्टरपीस का कोई जोड़ है? यहाँ पे एक सोचने का विषय है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में भी कोई मास्टरपीस तैयार हो रहा है, मसीह का मास्टरपीस। सोचने का विषय है, सोचने का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुल्हन बुला ली जा चुकी और अब एक सैमुअल है न्याय बोलने के लिए, ओहो, वाइल सुंडेलने के लिए इस पापी और व्यभिचारी जाति एली और हुफने फिनास जैसी पीढ़ी के ऊपर। क्या आज हम उस पीढ़ी में रह रहे हैं? सैमुअल एक घर में पैदा हो रहा है, बहन भी ग्रेस है। हन्ना का मतलब ग्रेस, एल्काना ड्यूक और प्रिंस, और एक सैमुअल एक नबी की तस्वीर एक घर में निकल के आ रहे हैं। कौन से दिन? जुलाई 3, जिस दिन ब्राइड का प्रीव्यू देखा और देखा कि ये ब्राइड अब ऊपर जा रही है। जिस प्रीव्यू को लास्ट टाइम जब उन्होंने शेयर किया तो शेयर ही करते रहे और वो एंड तक 65 के एंड तक उस प्रीव्यू के बारे में बोलते रहे। क्यों प्रीव्यू बार बार दोहरा रहे हैं? उन्हें मालूम है देयर विल बी अ ब्राइड। एक चर्चेस हैं जो कि फैशन परेड में हैं और एक रियल ब्राइड है जो मसीह की दुल्हन है। विल देयर बी अ ब्राइड जो आज एक मैन चाइल्ड पैदा करे, एक सेकंड राइड को पैदा करे, एक उड़ने को पैदा करे। हमें एक पुत्र दिया गया जिसका नाम रैप्चर रखा गया। क्या आपने कभी सोचा? हमें एक पुत्र मिला जिसका नाम है देह बदलाव। हमें एक पुत्र मिला जिसका नाम है चंगाई। हमें एक पुत्र मिला जिसका नाम है फलानी फलाना वायदा। आप हैं मेरे साथ? ये है वो युग। और आज एक हन्ना है जो प्रार्थनाओं में, उपवास में लगी हुई है। शीलो के पास उसका एक मोटिव है, आपका बीज जिसको मैं देधारी करके दिखा पाऊं, जिसके लिए मैं बनाई गई। नबी ने क्या कहा? हव्वा का बनाने का कारण क्या था? टू रिप्रोड्यूस, टू ब्रिंग फोर्थ। एक चर्च का क्या काम है? टू रिप्रोड्यूस क्राइस्ट, टू रिप्रोड्यूस प्रोमिसेस, टू रिप्रोड्यूस द वर्ड, वचन को देधारी करना। इसके लिए एक दुल्हन बनाई गई जिसके आप और मैं आज एक सदस्य हैं। आज उस रिप्रोडक्शन में क्या मैं और आप लगे हुए हैं? उसके लिए क्या मैं चिंतित हैं? हम आप चिंतित हैं? इतने दिन हो गए, ये वायदा ही बन के रह गया, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हुआ। इसके लिए कोई उपवास रखेगा? परफेक्ट स्ट्रेंथ में परफेक्ट वीकनेस का वो जो कोट है लॉर्ड, कब पूरा होगा हमारे जीवन में? वो कब देधारी होगा? क्या इसके लिए कोई दुआ करेगा? जिस चीज के लिए किसी ने दुआ करी, फिर खुदा ने उसी घर में वो चीज भेज दी। आमराम ने दुआ करी कि आप तो डिलीवरेंस भेजें, तो खुदा ने कहा डिलीवरेंस ही नहीं, वो डिलीवरर जो डिलीवरेंस लाएगा तेरे ही घर में पैदा होगा। अगर कोई रैप्चर की दुआ शुरू कर दे, दिल से कोई दिल से दुआ शुरू कर दे, आज खुदावन रहम करें कि ये वायदा सवारी का, भरे जाने का, सेकंड सर्च का हमारे जीवनों में पूरा हो जाए, हम यहां से चले जाएं, तो क्या पूरा नहीं होगा? खुदा ने कहेगा तेरे ही घर में भेजता हूं सेकंड सर्च। ओ ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदा के नाम की तारीफ हो। तो ये सैमुएल तस्वीर है एक बांझपन के समाप्त होने की, जिसके कल्मिनेशन पे एक बालक पैदा हुआ जो मंदिर में ले लिया गया और उसकी मां साइलेंस में डिसअपियर हो गई। उसके और बेटे बेटियां भी हुए। मैं कहूंगा इस ब्राइड के पहला बेटा जो इस युग में हुआ, जो कि एक्सेप्ट हो गया, जिसका नाम था भाई बिली ब्रैनम, हमारा सैमुएल। लेकिन उसके एक्सेप्टेंस के बाद और भी बेटे बेटियां हुए और वो भी उस परिवार के हैं जिस परिवार का सैमुएल है। खुदा के नाम की तारीफ हो, ताकि वो सैमुएल के लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करे। आज खुदा का नाम मुबारक हो कि आज मैं और आप ऐसे समय में रखें। अब मैं आपसे कुछ बात बोल सकता हूं? इब्रानियों किताब निकालें। मेरे विचार से 1 मिनट से पहले निकालें, मैं आपसे एक पहला सवाल पूछ लूं। मेन नबियों में पहला नबी कौन है बाइबल में? मेन नबी
तो जो नबी गिने जाते हैं तो सबसे पहला तो मूसा होना चाहिए, नहीं? मूसा है। खुदा मेरे समान तुम्हारे बीच में एक नबी खड़ा करेगा। उससे पहले अब्राहम भी एक नबी है, नो डाउट, जो कि एक मेन नबी में गिने जाते हैं। आइए इब्रानियों निकालें, इब्रानियों 11 फेथ का चैप्टर, जिसको मैं और आप 2 साल देखें। आइए एक आयत को गौर से देखें। इसकी 32वीं आयत हिंदी में जरा जोर से पढ़ दें। अब और क्या कहूं, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का हाँ, और बाराक, गिदोन, बाराक और शिमशोन का, समसोन। अब ये तो सब कौन है? न्यायी। यस, आगे और यिफ्ता का, ये कौन था? जज, यस, न्यायी, और दाऊद और शमूएल का, हाँ। और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। जब भविष्यद्वक्ताओं का सब्जेक्ट आया भाई पौलुस के सामने, आपने स्टार्टिंग में किसका नाम लिया? सैमुअल एंड द प्रॉफिट्स। क्यों? मूसा नबी था, देश में नहीं। अब्राहम नबी था, केवल एक वायदे के साथ। लेकिन जब देश बसा, देश के बसने के बाद, वायदे के आने के बाद, जो तस्वीर है पेंतिकुस्त का दिन के बाद, इजरायलियों में पहला में नबी सैमुअल है। जोशुआ के बाद केवल न्यायी रहे, न्यायी, लेकिन पहला नबी कौन आया? सैमुअल। सैमुअल के बाद अब गिनिए मेन नबी कौन कौन से हुए। सैमुअल, दाऊद नहीं होगा, कोई राजा भी है। यिर्मयाह, यशाया, यिर्मयाह, हेजकियेल, सैमुअल, यशाया, यिर्मयाह, एजेकियल। डैनियल भी नहीं, क्योंकि डैनियल तब बाबुल में था, देश में नहीं था। आपको समझ में नहीं, वो माइनर प्रॉफिट्स है, मेजर की बात हो रही है। मैं मिस कर रहा हूं 1-2 को। और जब आप देखें तो 7वें नंबर पे आता है जॉन द बैप्टिस्ट। आपकी समझ में आ रही है? 7वां नंबर आता है जॉन द बैप्टिस्ट का, और 7वें के बाद सन ऑफ मैन आ गया। सैमुअल से शुरू किया नबियों का वृतांत, वो बाकी 2 भी मैं आपको बताऊंगा। ये है मेन नबी इजराइल के, मेन, माइनर नहीं, मेजर। आपको समझ में आ रही है? ये मेजर प्रॉफिट्स आए। जकरिया नबूवत कर रहे हैं, हग्गे भी नबूवत कर रहे हैं, माइनर प्रॉफिट्स हैं। लेकिन मेजर प्रॉफिट जो थे वो 7वां जो मेजर प्रॉफिट था वो जॉन द बैप्टिस्ट था। कहां पे? भूमि के अंदर, इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर जो पहला सिलसिला शुरू हुआ किससे? सैमुअल से। जो अब एक दूसरी तस्वीर समझें, एफेसस की तस्वीर है, जबकि संदूक आया लेकिन निकोलियों के कारण ले लिया गया। लेकिन फिर खुदा ने सैमुअल सरीखा एक और भेजा अंत के समय में, जब वो ग्लोरी वापस लौट के आ गई। आपकी समझ में आ रही है? मैं आगे बढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन केवल इतना कहूंगा, कुछ साधारण बातें आज समझें। हन्ना का रोना कि मुझसे बच्चा कब पैदा होगा, मैं सोचता हूं आप लोगों ने समझा होगा। जिसके लिए वो दुआएं कर रही है, उपवास कर रही है। क्या आज वो कलीसिया उपवास प्रार्थना में जाएगी? और एक नर बच्चा पैदा हुआ जो कि मंदिर में उठा लिया गया, एक सैमुअल। और तब ये था वो मैसेज जो प्रचारा गया उस दिन, उस जगह, जब ये पिलर ऑफ फायर आया। आज फिर प्रचारा जा रहा है इस घर में। आपकी समझ में आ रही है? जब मैं इन बातों को आपसे बोल रहा हूं, मैंने एक अभिषेक यहां महसूस किया जिसमें होकर मैं बातें बोल रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साइकिल अब समाप्त हो रही है और अब वक्त आ गया कि प्लेग्स आए और ये ब्राइट रैप्चर में उड़ जाए। दिस जुलाई द 3rd इज अ मेमोरियल। ये 3 जुलाई
एक मेमोरियल है आपके और मेरे लिए। 64 की सीरीज पढ़ी है, ट्रम्पेट्स। 64 सीरीज है, मास्टरपीस। और 64 उसी अगस्त के महीने में ही इज प्रीचिंग फ्यूचर होम। आज चर्च में क्या चल रहा है? फ्यूचर होम। और फ्यूचर होम के साथ साथ ये मैसेज आ गया सैमुअल का, प्लेग्स, वायल्स। ये क्या मैसेज अभी नहीं चल रहा? मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्यारे भाई, अगर ये साइकिल कंप्लीट हो रही है और वो संदेश एक घर में रिपीट हो रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च में तो मैसेज था सील्स का, घर में मैसेज था विक्ट्री डे। डिड यू रियलाइज इट? आज कईयों के लिए विक्ट्री डे है। अगर आपने एक चीज समझ ली कि मैं भी हन्ना के समान अब खुदा के पास जाऊंगी, और ये मेरी दुआ रहेगी कि अब ये वचन जो प्रचारा जाता है मेरे माइंड में ऐसा रजिस्टर हो यहां पे कि रुक जाए, वॉश आउट ना हो, रह जाए, जो एक समय आने पे एक वचन को देधारी करे। सैमुअल अब इसी चीज की तस्वीर है। जब आज इस बच्चे सैमुअल का हम जन्मदिन मनाने आए हैं, स्पेशल चाइल्ड जो खुदा ने इस घराने को बख्शा, लेकिन स्पेशल चाइल्ड में हम अपना एक स्पेशल चाइल्ड देख रहे हैं, खुदावन का वचन देधारी, जिसको सेलिब्रेशन में आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्या ये सच्चाई है? खुदा का नाम मुबारक हो। और आप ध्यान से देखें, ये सब लोकल है जो यहाँ बैठा है। आप भी लोकल हैं, यहाँ के लोकल, आप भी यहीं के लोकल बुराड़ी के हैं, आप लोकल परिवार के हैं। किन जगहों से लोग आए, किन स्रोतों से आए? गुप्ता भाई टाइटस एक कार में, एक स्रोत। मैं बोआज एक स्रोत, भाई राजीव एक स्रोत, 3 मजूसी, एक बच्चा। क्या आपने सोचा इस चीज को? किसे सेलिब्रेट करने आए? उद्धार को, जो अब पृथ्वी पर है। क्या आपकी समझ में आ रहे हैं? आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि हम आज दीदार करने आए हैं। हम है वो वाइज मैन जिसने सितारा देखा, जिसने लाइट देखी। अराइज शाइन, योर लाइट हैज कम। और आज खुदावन का धन्यवाद हो, वो बच्चा बढ़ रहा है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। तो आज हम इस बच्चे में अपने खुदा के एक वायदे को देखते हैं, और मेरी दुआ है इस बच्चे को खुदावन बहुत सरफराज करे, जिस्मानी रूहानी तौर से फुलाए, फलाए, बढ़ाए, और बच्चा खुदावन के मार्ग में एक बहुत बढ़िया पिलर बने। खुदावन इस परिवार को और भी फलवंत बनाए, आगे बढ़ाए, आपकी जरूरतों को खुदावन पूरा करे। जैसे रोटी, कपड़े, मकान की एक बेसिक जरूरतें होती हैं हर परिवार की, खुदावन उसे पूरा करे। खुदावन का नाम मुबारक हो। आप सब लोग भी जो नेट के द्वारा कनेक्ट हुए या सुन रहे हैं, सुनेंगे, प्रभु आपको बड़ी आशीष दें। आइए एक छोटी दुआ करें। धन्यवाद हो खुदावन आज शाम के इस विजिटेशन के लिए, जब आपने हमें तौफीक दी कि हम यहाँ इकट्ठा हों इस बच्चे के जन्मदिन पर, जिसका नाम माँ बाप ने शैमुएल रखा। हमारे दिल के तार झंझना जाते हैं जब हम इस नाम और उसके हिस्ट्री पे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे इतिहास और हमारी बेदारी के साथ जुड़ा है। हे प्रभु, हम पर रहम करें कि जब हम अपनी बेदारी को इस बच्चे के नाम में सेलिब्रेट करने यहाँ आए हैं, तो अब ये हो खुदावन कि वो अभिषेक अब उतरे और हम यहाँ से उड़ के चले जाएं। अब एक रैप्चर ही हो। धन्यवाद हो कि आज 3 स्रोतों से आए लोगों ने ऐसे विटनेस किया है। आपसे दुआ है कि बाकी लोग भी जो सुनते हैं ब्लेस हों। सारे आदर महिमा के योग आप उस बच्चे को संभालें खुदावन, जिस्मानी रूहानी तौर से सरफराज करें, फुलाएं, फलाएं, पढ़ाई में, लिखाई में, हर रीति से इस बच्चे को बढ़ाएं। इस परिवार को सरफराज करने की जरूरतों को आप पूरा करें। हम सब जो आए आपकी ओर से आशीषित हों। अपनी ताकत और तंदुरुस्ती से आप ही हमें भरें। सारे आदर और महिमा के योग आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दें, और जिस तरह माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, राई से बचाएं।
बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रेज द लॉर्ड।